Students, today we are going to discuss about an important topic which usually asked in the board examination also, and that is ovarian cycle or the menstrual cycle. So what is this cycle? This cycle is actually that during the reproductive period, ovaries and female reproductive tract undergoes series of cyclic changes for the fertilization and the pregnancy, and collectively we call them the menstrual cycle. And this menstrual cycle is you can say a mark of a puberty also, because it starts at the puberty, and the first menstruation is known as menarche, and basically it occurs into the primates, female of the primates only, like monkeys, apes, all these animals, and human beings also. And in the middle, this cycle is on average repeat after every 28 or 29 days, and one ovum is also released during the middle of the uh, menstrual cycle. And there is a diagram which is given in your book, and ये diagram बहुत important है, बहुत सारे questions इससे बनते हैं, and I am going to explain you the menstrual cycle with the help of this diagram, because see, the menstrual cycle is a cycle which is basically governed by the hormones, because hormones are something which brings the various changes into the female reproductive tract as well as ovaries. तो दो हॉर्मोन्स होते हैं बेसिकली फीमेल्स में, जो इसको पूरे को कंडक्ट करते हैं, पूरी साइकिल को आप कह सकते हो, इंड्यूस करते हैं कह सकते हो. And these two hormones are the pituitary hormones and the ovarian hormones. That means some hormones which are released by the pituitary gland and some which are released by the ovary. So that means there are a very you can say important influence of these hormones onto this ovarian cycle or the menstrual cycle. So in this diagram they have started the cycle from the from here, that is menstrual phase, and then follicular phase, then luteal phase. But I am going to explain you this cycle with a different aspect, that is I start explaining you with the follicular phase, है ना. तो मैंने भी इनको चार फेज में ही आपको समझाना है, बट फ्रॉम द फॉलिकुलर फेज से आपको स्टार्ट करना समझाना है, बिकॉज आई थिंक इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फॉलिकुलर फेज एंड विद द रेफरेंस ऑफ हॉर्मोन्स. मैं हर साइकिल आपको हॉर्मोन्स के रेफरेंस में एक्सप्लेन करूंगी. And in this phase what happens? In this phase FSH and LH increases from the anterior pituitary, secretion बढ़ जाता है, and you can see here this is FSH, this is LH, and you can see the peak, this blue one and red one आपको दिख रही दोनों. red one is the denoting FSH and blue one denoting the LH. तो ये आपको peaks दिख रहे हैं ना ऊपर आते हुए. तो दैट मीन्स कि जो सिक्रीशन है एंटीरियर पिट्यूटरी से वो FSH and LH का इंक्रीज हो जाता है. And when secretion of FSH and LH increase, obviously these are the hormones, so they bring about certain changes. So what changes occurs? That FSH changes the primary follicle into the Graafian follicle. You have studied in the previous lecture that in a TS of ovary you can see various developing stages of the follicles. They are in the primary stage, they are secondary follicle, there are tertiary follicle, and there are Graafian follicle. तो दैट मीन्स कि FSH का काम क्या हुआ? FSH कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर. And what is the function of Graafian follicle? We already know that Graafian follicle starts secreting estrogen, and function of estrogen also you know from your 10th standard, that estrogen helps into the growth and maintenance of secondary sexual characters in the females. But there are certain other functions also rather than this function. What is the next function? Is the uterine endometrium become thick and more vascular and more glandular due to the effect of FSH. तो ये भी एक important काम होता है, because see what is the basically purpose of this menstrual cycle? The purpose of this menstrual cycle is to prepare the prepare the uterus for the implantation. तो इसलिए जो यूट्रस है उसको क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे फॉर द इम्प्लांटेशन. एंड बेसिकली द इनर वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग, क्योंकि पेरीमीट्रियम मायोमीट्रियम का इतना उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जो एंडोमीट्रियम विच इज़ इनर लाइनिंग है, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो वहीं पर होगा ना, तो इनर लाइनिंग के अंदर चेंजेस आते हैं. तो ये ग्लैंडुलर वैस्कुलर थोड़ी थिक फॉर दैट इम्प्लांटेशन ना पूरी प्रिपरेशन करता है वो इम्प्लांट करने के लिए, अपने को रेडी करता है. एंड एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब बिकम्स थिक,
एंड सीलिएटेड, सीलिया आ जाते हैं, थिक हो जाती है, फॉर व्हाट सीलिया, so that they can conduct the zygote if there is a fertilization, and if there are no fertilization तो किसको conduct करेगी, for the ovum, तो conduction तो उसको दोनों हाल में करना है, तो चाहे वो conduct करे ovum को चाहे वो करे zygote को, and it also inhibit the secretion of FSH and stimulates LH from anterior pituitary. As I told you that both these hormones are secreted, ये यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, if I change the color again, ये जो हॉर्मोन्स हैं यहाँ पर, ये ब्लू एंड रेड वाले, तो ये अभी तो इंक्रीज हो रहे थे, है ना, क्योंकि फेजेस हैं ये, तो दे कीप ऑन ग्रोइंग, फेज चलती रहेंगी, रुक तो नहीं जाएंगी एक जगह पर। तो अब नाउ धीमे धीमे क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि FSH का सिक्रीशन इनहिबिट होने लग जाता है एंड LH का सिक्रीशन इंक्रीज होने लग जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी LH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन, ओव्यूल्यूशन अकर्स, ठीक है, एवोल्यूशन अकर्स। तो आई जस्ट रिमूव द ऑल इंक so that we can see it properly. तो अब now next phase we enter into the ovulatory phase. तो अब हम ovulatory phase की बात करेंगे। तो what happens into the ovulatory phase? And ovulation occurs as I told you in the middle of the menstrual cycle. तो menstrual cycle के बीच में, अब that means मैंने आपको बताई 28-29 days की cycle, that means ovulations occurs in the mid, that means 14th डे, है ना। तो 14th डे पे menstruation होता है, ये कोई फिक्स नहीं है, बट ये 14 से 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और 13 और 12 भी हो सकता है। दैट मीन्स 2 days या तो आगे या पीछे ऐसा हो सकता है। तो व्हाट हैपन्स इनटू द ओव्यूल्यूशन फेज, ओव्यूल्यूशन मीन्स रिलीज ऑफ ओवम। तो जब ग्रेफिन फॉलिकल बन चुका है कम्प्लीटली, तो ओव्यूल्यूशन अकर्स ऑन टू द 14th to 15th day of the onset of menstrual cycle, and ovulation is controlled by the increased level of LH in blood. जब बॉडी में LH लेवल बहुत होता है तो ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और ओवा को रिलीज कर देता है। तो LH चेंज, अब जब ओवा सपोज ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम्स में, आई जस्ट रिमूव द इंक एंड देन आई विल शो यू अगेन। मैं बहुत छोटे से बिंदी से रख के आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्लियर हो। दिस इज द ओवल्यूशन एंड इट इज़ अ रैप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल। ये ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर हो रहा है ये वाला, और इसमें से ये क्या निकल रहा है, ओवम निकल रहा है, दिखाया हुआ है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि व्हेन एवर ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम निकल आएगा बाहर, ये ग्रेफिन फॉलिकल बना लेते हैं हाइपोथेटिकल, एंड ये ओवा, तो ये ओवा सपोज निकल आया बाहर, रैप्चर हो गया ग्रेफिन फॉलिकल और इसके अंदर से ओवा बाहर निकल आया। तो जब ये रैप्चर होकर बाहर निकल आया तो ग्रेफिन फॉलिकल क्या रह गया, एम्प्टी। So this empty Graafian follicle is converts into a yellow color gland, and this is called as corpus luteum, and it starts secreting very important hormone that is called progesterone, क्योंकि आगे ये help करेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, that is called corpus luteum। ये जो empty Graafian follicle है, this is converted into corpus luteum। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CL, इसको ही corpus luteum कहते हैं empty Graafian follicle को, and it is endocrine। फिर इसको क्या बोलेंगे, this is endocrine, क्योंकि जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन बोलते हैं ना। तो ये इसका मतलब कैसी ग्लैंड होगी, इट इज़ अ येलो कलर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम इज नथिंग बट एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, एंड इट सिक्रेट्स द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, एंड देयर इज नो मच चेंज अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द यूट्रस लाइनिंग। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इस फेज में कोई चेंज नहीं होता। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज अभी मैं आपको बताऊंगी, दोनों एक ही का पार्ट है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। बट फॉर योर कन्वीनियंट आई हैव जस्ट गिवन द नेम ऑफ डिफरेंट फेजेस। नाउ कम टू द ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज में आप डिवाइड करो या ना करो, वो सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली है वही मैं आपको रिपीट करने जा रही हूँ। दैट इन दिस फेज कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म, कॉर्पस लूटियम बन गया। इट स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होना शुरू हो गया। That means progesterone level increases, and whenever progesterone level increases in the blood of female, it also brings about certain changes. Likewise in the case of FSH we have studied just before, अभी हमने पढ़ा है जो उसी का। तो what changes brings this progesterone hormone, है ना, ये क्या करेगा, तो it decreases the secretion of FSH and LH, दोनों के सिक्रीशन को ये कम कर देता है। किसको, FSH को और LH को, इन दोनों को क्या कर देगा, डिक्रीज, माइनस माइनस, है ना, कम कर देगा। एंड कहाँ से ये दोनों निकलते हैं, ऑब्वियसली वी नो दैट द पिट्यूटरी, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द दिस डायग्राम ऑल्सो, क्योंकि इसमें से तो आपको बताना है एग्जाम में, तो ये वाले डायग्राम से हम करेंगे। तो ये जब ये अभी आप देखोगे यहाँ पर जब ये रैप्चर हो रहा है यहाँ पर, तो इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ FSH एंड LH। तो FSH एंड LH का जो फ्लो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, एंड
जब ये फ्लो कम हो जाता है फ्रॉम, कहाँ से कम हो रहा है, फ्रॉम पिट्यूटरी, एंड इनहिबिट द maturation of follicle and ovulation, क्योंकि FSH and LH directly affect to the maturation of Graafian follicle and the ovulation we studied right now. अभी आपने पढ़ा ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक प्राइमरी फॉलिकल इज मेच्योर्ड इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल विद द इफेक्ट ऑफ FSH एंड व्हेन LH लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड ओवल्यूशन टेक्स प्लेस. तो दोनों ही आपको, दोनों को ही खत्म होना है, क्योंकि ओवल्यूशन हो गया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. तो ग्रेफियन फॉलिकल बनाया, वहाँ से हमने ओवर रिलीज करा, हमारा काम खत्म. तो अब हम FSH और LH का सिक्रीशन ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. तो यू कैन सी इट हियर ड्रॉपिंग ऑफ, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये ड्रॉप हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, दोनों डाउन हो रहे हैं. ये ओवल्यूशन वाली स्टेज है ना, यू क्रॉस दिस स्टेज, ओवल्यूशन हो गया, देन द लेवल ऑफ FSH एंड LH इज कीप ऑन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड यूट्रस इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन बाई द प्रोलीफरेशन ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम एज वेल एज, जो भी आपने मतलब अभी पढ़ा कि FSH एंड LH का डिक्रीज स्टार्ट हो जाता है, ओवल्यूशन हो जाता है, एंड आफ्टर ओवल्यूशन यूट्रस लाइनिंग स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन. एंड फॉर दैट, इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करने के लिए अपनी वॉल्स को थिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया, मोर ग्लैंडुलर मोर वेस्कुलर, ऐसा बनाना है अपनी वॉल्स को. And then what happens, next phase is the menstrual phase. Suppose ovum remains unfertilized, है ना, fertilization नहीं हुआ, ovum remain unfertilized, then what happens, this corpus luteum starts degenerating. देखो ये तो था developing corpus luteum and this is रीजेनरेटिंग और डीजेनरेटिंग, दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती. कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन ओवम सपोज रिमेन अनफर्टिलाइज, अगर ओवम अनफर्टिलाइज रह गया तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑल्सो डिक्रीजेज इन द ब्लड. यूटेराइन टिश्यू ऑल्सो फेल्स टू मेंटेन्ड, क्योंकि उनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो जाइगोट बन जाता, और जाइगोट जाता कहाँ पर, यूट्रस में जाता. फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इम्प्लांटेशन पर्पस. बट हियर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. आई टेल यू दैट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एंड जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज कॉर्पस लूटियम का फंक्शन क्या है, यू हैव स्टडीड दैट सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो प्रोजेस्टेरॉन की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर हमें कॉर्पस लूटियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो कॉर्पस लूटियम ग्रेजुअली स्टार्ट डीजेनरेटिंग एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑल्सो डिक्रीज इन द ब्लड. एंड जब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है तो यूटेराइन टिश्यू फेल टू बी मेंटेन, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो यूट्रस का टिश्यू जो है वो क्या करेगा, मेंटेन होकर के, तो वो भी डिजेनरेट हो जाता है. तो unfertilized ovum along with the ruptured uterine epithelium and some mucus discharge out from the body, or you can say vaginal opening, in the form of blood flow, or you can say the menstrual cycle, and it lasts for 4 to 5 days. And at that period, decreased level of progesterone and estrogen in blood stimulates the anterior pituitary to release FSH, and this FSH again bring about the different various changes like formation of follicular phase, क्योंकि अब ये जब फर्स्ट जो है menstrual cycle हो गई, menstrual flow हो गया, that means fertilization नहीं हुआ, तो बॉडी क्या करेगी, नेक्स्ट मंथ another cycle, क्योंकि 28 and 29 डेज के बाद ये रिपीट होता है, मैं आपको बोल रही हूँ, तो वो नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन करेगी. एंड फॉर नेक्स्ट साइकिल द LH लेवल डिक्रीजेज इन द ब्लड, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. that here you can see that estrogen progesterone लेवल यहाँ पर दिखाया हुआ है. तो उसके बाद में फिर क्या होगा, FSH एंड LH का जो सिक्रीशन है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल की प्रिपरेशन करनी है. तो एंटीरियर पिट्यूटरी में स्टिमुलेशन जाएगा बाय द फीडबैक, इट स्टार्ट सिक्रीटिंग FSH एंड LH, जैसे मैंने आपको बताया था. एंड FSH का काम क्या होगा, अगेन ब्रिंग अबाउट द changes into the primary follicle, and it converts into the again Graafian follicle, and Graafian follicle again release the ovum, ovulation occurs. तो ये cycle जो है वो चलती रहेगी. तो with the help of this diagram you can also understand the various conditions of the reproductive tract of the female, and also the level of, or you can say condition of hormones also, how this ovarian hormone, that is estrogen level, increases at the time of ovulation, and how the progesterone level is down during this ovulation period, and then again they started rising. That means progesterone level is rising during the formation of corpus luteum, क्योंकि उस समय अगर corpus luteum बना है तो obviously progesterone level क्या होगा, ये increase हो जाएगा, and जो estrogen level है ये थोड़ा सा
डाउन हो जाएगा। तो विद द हेल्प, एंड दिस इज़ द यूट्रस की लाइनिंग ये दिखाई हुई है, एंडोमेट्रियम, दैट मीन्स दिस इज़ द एंडोमेट्रियम। तो दे बेसिकली दिस साइकिल इज बेस्ड ऑन टू द pattern of these hormones. And in the human female, because we are talking about this, so this cycle, when this cycle stops at the age of around 50, मतलब कोई एकदम set नहीं है, but around 50, 40, 48, 45, any age can be. And this whenever the menstrual cycle stops, this period is known as menopause. And in young females also, sometimes during the time of pregnancy, this cycle stops. And some other reasons also, like there are certain added, you can say added reasons, like stress or poor health or some other hormonal imbalance also, this cycle can be interrupted. And in that case, medical advice is necessary. So this is all about this cycle, and I hope you understand it. And with the help of this diagram, various kinds of hormonal changes you can see. So you have to study about all these hormones. And important thing I have underlined and noted it down for you in the some notes form. Also you can see various stages which I have explained you earlier. I have made these notes for you in the easy form. If you wish, you can read these notes also. These are all complete notes I have given. That's all about the ovarian cycle. We will meet into the next